So good morning and Jai Hind students. We were studying about electricity, and in electricity we have completed about the static charge and how it is doing this something. What is the static charge? How does it move? And while moving the charge, what I get is the electric current. And in electricity, this chapter we have to study about these 13 topics. These are electric current, conventional current, electric circuit, electric potential and potential difference. We have studied till now about the conventional current. So moving further, what are electric circuit? How they contribute to our problem solving skills, and what is electric potential and potential difference. Today we have to study about electric potential and potential difference. बाकी जो है आपके सिंबल्स यूज्ड इन सर्किट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, 9th पॉइंट सीरीज एंड पैरेलल, 10th हीटिंग इफेक्ट, 11th जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्यूज. इस तरीके से आपका चैप्टर ये गो ऑन होगा. तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट दी electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor in 1 second. इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा? I is equals to Q by T. It is defined as the rate of flow of charges, and these are different types of currents. First one is the steady current, which does not vary with the time. Second one is the varying current, whose magnitude varies with according to the time. And D is alternating current, whose magnitude varies continuously and direction changes periodically. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा alternating current. So what we have to study is this steady current which do not vary with time. Next point is SI unit. As you all know, चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है एंड टाइम की सेकंड होती है. तो आपके करंट की यूनिट क्या बन गई? कूलम पर सेकंड. It is nothing but also known as ampere, named after the French scientist André Marie Ampere, who was on the earth in 1775 to 1836. कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं. आपको क्लास में ही बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equals to any चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. 1 coulomb is equivalent to the charge of 6.25 10 to the power 18 electrons. 1 coulomb, in fact, it is a very high charge. Therefore, charge is expressed in smaller units like millicoulomb and microcoulomb. तो चार्ज कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसको हम लोग छोटी यूनिट्स में तोड़ के मिलीकूलम एंड माइक्रोकूलम में तोड़ देते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं. जब चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है तो उसका रेट ऑफ चेंज ये भी ज़्यादा होगा. इसलिए करंट की जो एम्पियर यूनिट है 1 एम्पियर, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिगर यूनिट. तो वी यूज़ milliampere and microampere. Microampere means 10 to the power -6 and milliampere means 10 to the power -3. So moving further, what do you mean by the conventional current? Conventional current is the current whose direction is along the direction of motion of positive charge under the action of electric field. And conventional current due to motion of electron in the direction opposite to that of motion of electron. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट आपकी इधर जाएगी. ठीक, यहाँ डायग्राम में जो बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन आपका आगे जा रहा है और करंट आपकी पीछे आ रही है. कन्वेंशनल करंट का एक मतलब ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जा रहा है हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स हमारा करंट वो भी आगे की तरफ जा रहा है. यही है कन्वेंशनल करंट. इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फर्दर आपको स्टडी करते हुए आता जाएगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ. इस बात को याद रखिएगा. अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट. कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए. कंटिन्यूअस का मीन्स वो बीच में पाथ ब्रेक नहीं होना चाहिए, वायर्स टूटे नहीं होने चाहिए. क्लोज्ड हम लोग फिजिक्स में कहते हैं कि ये एक क्लोज पाथ है जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आर जॉइंड विद अ की. दिस इज़ नोन एज द की. दिस इज़ की. तो जहाँ पर भी आपकी की लगी हुई है और सब कुछ सर्किट में आके वहाँ पर जुड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज द क्लोज पाथ. अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल और बैटरी, जिससे आपको पोटेंशियल मिलेगा. अ स्विच, जिसको आप की कहते हैं, जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. एंड अ लोड, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. लोड मीन्स आपके घर में AC है, फैन है, कूलर है. दैट इज़ टू मेजर अ करंट.
we use ammeter, current measuring instrument, always connected in series. This is important point. And to measure the potential, we use voltmeter, and it is always कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अमीटर आपका किस में कनेक्टेड होगा? सीरीज़ में. और वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होगा? पैरेलल में, अक्रॉस द लोड. अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें? एक बैटरी दिख रही है जिसमें करंट आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है. एक बल्ब आपका जिसको आप लोड कह रहे हैं, या इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आपने इसको क्या कहा? इसको आपने कहा रेजिस्टेंस, और इसको आपने एक की के माध्यम से जोड़ दिया है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस क्लोज पाथ. यस इट इज़. Does it will flow a current? Yes, it will flow a current. Does the bulb will glow? Yes, always. So अगर इसी चीज़ों में और कुछ जोड़ना चाहें तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया है. करंट अब भी फ्लो कर रही है, बैटरी अब भी हमारे पास लगी हुई है, अमीटर रखा हुआ है टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, एंड देयर इज़ अ की टू ऑन ऑफ द स्विच. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So electric potential is a physical quantity which determines the flow of charges, from one body to the another. Electric potential आपकी ऐसी क्वांटिटी है जो आपका मेजर करेगा फ्लो ऑफ चार्जेस को फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी. Electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving without any acceleration. इस बात का ध्यान रखिएगा, without any acceleration. हो सकता हो आपको अभी ना समझ में आया, पर क्लास 12th में आपको समझ में आएगा कि अगर एक्सेलरेशन इसमें आ गया दैट मीन्स ये मैग्नेटिज्म को जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. इसलिए अभी कहा जा रहा है कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोडेड. जिस भी पाथ से आप लेके आ रहे हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से किसी एक सर्टेन पॉइंट तक, उसमें होने वाला वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. V इज इक्वल्स टू W/Q. दिस इज द formula of mathematics which will define the electric potential. Now what is the electric potential? SI unit. It's measured in volt. यहाँ पे देख सकते हैं वर्क डन measured will be joule, Q that is charge measured will be in coulomb. So joule per coulomb और Newton meter per coulomb और volt, these three are the unit of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इस बात का ध्यान रखेंगे कि यही 3 यूनिट हैं. तो वोल्ट नाम कहाँ से आया? अलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक फ्रेंच इटालियन फिजिसिस्ट थे 1745 टू 1827, जिनके सम्मान में हमने ये वोल्ट इसको यूनिट का नाम दिया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ 1 वोल्ट इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फानाइट टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ तक की बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया तो अब इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके शुरू हो जाते हैं. न्यूमेरिकल्स जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लेते हैं. व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन. दिस इज़ अगेन आई एम राइटिंग ये विदाउट एनी एक्सेलरेशन. आपके असर्शन रीजन या जो लेटेस्ट CBSE पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी हॉट्स के क्वेश्चंस के लिए. दैट टेल मी दैट while moving a charge from one point to the another point does it have any acceleration or not? तो वहाँ पर आप लगाएंगे no, we are dealing with the such quantities whose acceleration is we are not counting. A unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force irrespective of the path followed. ये कुछ डेफिनेशन आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जाके मिलती है. वहाँ पर आप चार्ज को मूव कराते थे इन्फानाइट से, यहाँ पर एक पॉइंट A से मूव कराएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? दूसरे पॉइंट B तक. तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू डेल्टा V. दिस डेल्टा V इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हाट यू हैव डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A to B, दैट इज WAB, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज. इन दोनों का रेशियो जब आप लेंगे दैट यू विल गेट एज द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ देयर आर 4 पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. Electric potential and potential difference are scalar quantities. These are scalar quantities. That means they do not require the direction. It's a scalar quantity.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फानाइट इज़ ज़ीरो, ये ज़ीरो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फानाइट. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q greater than 0 is positive, while that of an isolated negative charge Q less than 0. CGS unit is start volt. 1 start volt is equals to 1 urge per start coulomb. So I think till here you will revise it from your NCERT notes, and if you have any doubt then please contact me in school hours. Thank you and Jai Hind.